Hello students, in this lecture we study about statistics. In today's life, figures are very important. Knowledge which is not based on figure is not knowledge. When you can measure what you are speaking or you can express it in number, then you know something about it. If you can't measure or express it in number, then your knowledge is unsatisfactory. आज के युग में संख्याओं का बहुत महत्व है. जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, यदि आप उसको संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, और अगर आप उसको संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आपका ज्ञान अधूरा है. So in this topic, in this subject statistics, we learn all about figures. संख्याओं के बारे में अब ज्ञान एकत्रित करेंगे. तो statistics is collection presentation analysis and interpretation of data. Statistics की basic definition क्या है? Collection, presentation, analysis and interpretation of data. समूह का संग्रहण करना, प्रस्तुतिकरण करना, उनका विश्लेषण करना तथा उसके बारे में निर्वचन करना, उसको अपन क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं. नाउ डाटा, समंक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. समंक सबसे महत्वपूर्ण है. डाटा, डाटा का मतलब होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स from which conclusion can be drawn. Data means facts and figures from which conclusion can be drawn. संबंधों का ऐसे तथ्य या संख्याएं जिसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं. कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष. जिसका आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं, समंक कहते हैं. और ये समंक दो प्रकार के होते हैं. वन इज प्राइमरी डाटा एंड अनदर इज सेकेंडरी डाटा. डाटा आर ऑफ टू टाइप्स. That is primary data and another is secondary data. प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक. प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक. Primary data are those data which is collected first time, or you can say original in nature. Original in nature, which is collected first time. Secondary data are those data which are already collected, or it is second hand data. For example, I have two teams. मेरे पास दो टीम है, टीम ए और टीम बी. मैंने उन दोनों टीम्स को एक एरिया की पॉपुलेशन फाइंड करने के लिए बोला. टीम ए ने क्या किया? एक रजिस्टर लिया और शुरू हो गए हर मकान में, हर हाउस की कितनी पॉपुलेशन है वो काउंट करना. हर मकान में गए, कितने मैन, कितने वुमेन, कितने बच्चे, ऐसे करके उन्होंने सारे मकान में, सारे हाउस की पॉपुलेशन को क्या किया? काउंट किया. बी टीम ने क्या किया? इंटरनेट खोला, वहां से उस एरिया की
second data, that is known as secondary data. Primary data and secondary data. Now I will explain the definition of statistics. In definition of statistics, there are 4 words. That is, first, collection of data. The first step of statistics to collect data. For collection of data, a suitable method is used. सबसे पहला कार्य जो स्टैटिस्टिक्स में होता है वो होता है समूहों का संग्रह। समूहों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए आप कोई भी मेथड यूज ले सकते हो। इट मे बी प्राइमरी और इट मे बी सेकेंडरी। प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है। प्राइमरी मतलब ओरिजिनली कलेक्ट किया जा सकता है, सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कहीं पर पड़ा है तो उसको अपन ने यूज ले लिया, वेदर इट इज फ्रॉम इंटरनेट और इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम एनी मैगजीन और एनी अदर सोर्सेज। Presentation of data. Data can be presented by 2 ways. Tabular presentation and graphical presentation. In tabular presentation, we prepare table. For example, population data are collected. So one side it is written year, another side it is written population. This 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 3, 4, 7, 8, 10. So this type of presentation is known as tabular presentation. In graphical presentation, we prepare graphs. Data which are collected is presented in the form of graphs and diagrams. Graph may be one-dimensional or it may be two-dimensional or it may be three-dimensional. For example, bar charts, line graphs, or it may be pie charts. इनमें से कोई भी मेथड अपन यूज ले सकते हैं डाटा के प्रेजेंटेशन के लिए, समूहों के प्रस्तुतिकरण के लिए। आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नेक्स्ट स्टेप कम्स एनालिसिस ऑफ डाटा, समूहों का विश्लेषण। Now, after collection and presentation, many informations should be collected from or dig out from data. For that information, we need to analyze the data. हमें बहुत सारी सूचनाएं निकालनी पड़ती है उन समूहों से, जिसके लिए हमें समूहों का क्या करना पड़ता है? विश्लेषण। और इस विश्लेषण करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी के अंदर अपने पास बहुत सारी टूल्स और टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Dispersion and skewness, correlation, regression, index number,
series interpolation and extrapolation. So these are some tools and techniques or methods of statistics with the help of which we analyze the data. इन तकनीकों के सारे अपन समूहों का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं. केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण विषमता, सहसंबंध, प्रतिगमन, सूचकांक, काल श्रेणी, अंतर्गणन, परागणन और भी होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यही. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसको अपन कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. समूहों का निर्वचन. समूह का कार्य सिर्फ उनको संग्रहण करना, प्रस्तुत करना और विश्लेषण करना ही नहीं होता है. इसके अलावा भी सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है निर्वचन करना, उनका परिणाम देना, उसके लिए कंक्लूजन. इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन. जो भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसका आप क्या फाइंड करेंगे, कंक्लूजन फाइंड करेंगे. और यहां अगर स्टैटिस्टिक्स का लास्ट स्टेप होता है कंक्लूजन. सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. नाउ in statistics we use numbers which are also known as variables. सांख्यिकी में जो संख्याएं अपन यूज लेते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, चर कहते हैं. और ये चर दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल and continuous variable. Discrete variable and continuous variable. खंडित चर तथा अखंडित चर. खंडित चर डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं whose वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका मूल्य क्या होता है, स्थिर होता है, या जिनके बीच में डिफरेंस डिफरेंस निश्चित होता है. जैसे मार्क्स 0, 5, 10, 15, 20, रन्स 2, 4, 6, 8, 10. These are discrete variables. Continuous whose value is not fixed, just like marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. 10 to 20 means इनके बीच में कोई भी नंबर जो होता है वो आ सकता है. It may be 15, it may be 19.9, it may be 18.8, it may be 16.6, कोई भी वैल्यू हो सकती है. इसलिए इस 10 to 20 की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है. इसलिए ये डाटा कैसा कहलाएगा, कंटीन्यूअस डाटा कहलाएगा, अखंडित वेरिएबल कहलाएगा, अखंडित चर कहलाएगा. सो in statistics there are two types of variable, discrete variable and continuous variable. Discrete variable are those variable whose values are fixed or there is a definite interval between two values, just like 0 to 5, 5 to 10, 10, 15, 15 and 20, 2, 4, 6, 8, 10. समान होने की कोई जरूरत नहीं है. It may be like runs 1, 5, 10, 11, 15. All these are discrete data, खंडित चर. Continuous variable whose
value is not fixed. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40 कुछ भी हो सकता है, 31, 33.5, 35.5. So जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो अखंडित होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो खंडित होते हैं. Now after variable it comes frequency. आवृत्ति. When you collect data, जब अपन संख्याओं का संग्रहण करते हैं तो कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो बार बार रिपीट होती हैं. तो उन वैल्यूज को रिपीट कितनी बार होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो नंबर जो बार बार रिपीट होता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. तो वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी. जैसे मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Number of students 4, 3, 2, 5, 1, 6, 7. What does it means? क्या मतलब है? 15 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, इसका मतलब 15 कितनी बार आया है, 2 बार आया है. तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई. 35 कितनी बार आया है, 7 बार आया है, इसका मतलब 35 की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई, 7 हो गई. 5 कितनी बार, 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 4 स्टूडेंट्स के आए हैं. इट मींस कि 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार हो गई, 4 हो गई. वो समझ में आया होगा. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो भी आपका नंबर आपने कलेक्ट किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है वो कितनी बार आ रहा है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी के साथ एक और फ्रीक्वेंसी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. संचय आवृत्ति. Cumulative means continuous. Cumulative means continuous. If you want to find CF, cumulative short form CF. First frequency as it is. पहली आवृत्ति as it is लिख लो, उसके बाद ऐड करते जाओ. 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 21 में 7 ऐड किया 28. तो it is called continuous frequency, cumulative frequency. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी as it is लिखी, उसके बाद ऐड करते हैं. 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया 14, 14 में 1 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21, 21 में 7 ऐड किया 28. और अब लास्ट वाली जो CF है और इस फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है. दिस एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो this is frequency and cumulative frequency. Now the most important part of statistics for solving the question. Statistics का कोई भी प्रश्न हल करने के लिए अब जो अपन चीज पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है. सीरीज, श्रेणी. सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में there are 3 types of series. First, individual series. Discrete series. Continuous series. So, series in which only values are
श्रेणी में केवल मूल्य दिए गए होते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। उसे क्या बोला जाएगा? व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे मार्क्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, हाइट 5, 6, 7, 8, 9। ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि ये मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, बट वी हैव मार्क्स 2, 4, 6, 8, 10, 12। सेम हियर हाइट, ये कितने परसेंट की हाइट है अपन को नहीं पता है। इनकम 10, 15, 20, 25, 30, 35। इनकम कितने लोगों की है, कितने परसेंट की है, हमें नहीं पता है। दैट मीन्स जब आपको क्वेश्चंस में ये नहीं दिया होता है या सीरीज में आपको ये नहीं पता होता है कि वो वैल्यू कितनी बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, देन इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। व्हेन वैल्यूज प्लस फ्रीक्वेंसी इज गिवन, जब आपको मूल्य के साथ क्या दे देता है? आवृत्ति दे देता है, तो वो कैसी श्रेणी होती है? खंडित श्रेणी होती है। पर वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? डिस्क्रीट होनी चाहिए। मूल्य कैसा होना चाहिए? खंडित मूल्य होना चाहिए। जैसे मार्क्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 and number of students। 30 मार्क्स लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 15 मार्क्स लाने वाले 6 स्टूडेंट है, 5 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स है। ये इनकी फ्रीक्वेंसी देती है और इनके साथ क्या देती है? वैल्यूज। मार्क्स इज वैल्यूज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। ये वैल्यू कैसी है? डिस्क्रीट है, फिक्स है। 20 मींस 20, 30 मींस 30। सो दीस वैल्यूज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। ये वैल्यू कैसी है? खंडित मूल्य है, और खंडित मूल्य के साथ अपन को क्या दे दिया है? आवृत्ति दे दी है, तो ये क्या कहलाएगी? खंडित श्रेणी कहलाएगी। कंटिन्यूअस सीरीज, वैल्यूज प्लस फ्रीक्वेंसी, वो बात समझ गए होंगे। वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस। मूल्य अखंडित होंगे, तो श्रेणी क्या कहलाएगी? अखंडित श्रेणी कहलाएगी। जब मूल्य कैसे आ जाएंगे? अखंडित। अखंडित मूल्य का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस वैल्यूज का क्या मतलब होता है? जो कंटिन्यू चलते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। Number of students 3, 4, 6, 2, 1। Now 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स है? 6 है। मतलब 20 और 30 के बीच में जो मार्क्स लाने वाले हैं वो कितने स्टूडेंट्स है? 6 स्टूडेंट्स हैं। 40 और 50 के बीच में मार्क्स लाने वाला एक ही स्टूडेंट है। अब 20 और 30 के बीच में जो 6 स्टूडेंट्स है वो कितने मार्क्स लेके आए हैं? इट मे बी 22, इट मे बी 25, इट मे बी 29, कोई भी हो सकता है। इसलिए ये वैल्यू कैसी है? कंटिन्यूअस है। जब ये वैल्यू कंटिन्यूअस होगी तो सीरीज भी कैसी होगी? कंटिन्यूअस सीरीज होगी, अखंडित श्रेणी होगी। तो कि आप लोगों को सीरीज समझ में आई हो, क्योंकि जब कभी भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि ये व्यक्तिगत है, ये खंडित है, ये अखंडित है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है, ये इंडिविजुअल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। कि अपन को फाइंड आउट करना है कि ये सीरीज कैसी है। इट इज इंडिविजुअल सीरीज, इट इज डिस्क्रीट सीरीज और इट इज कंटिन्यूअस सीरीज। तो जिस किसी भी श्रेणी में, जिस किसी भी सीरीज में ओनली वैल्यूज आर गिवन, it is indivisible. When values plus frequency, it is discrete, and when values plus frequency and values are continuous, then it is continuous series. Now, in continuous series, there are class intervals, because there is a difference between
0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Here you write number of students 3, 4, 6, 5, 2 and 1. So these figures you are seeing 0, 10, 20, 30, 40 and 50. Here are also two numbers 10, 20, 30, 40, 50 and 60. All these numbers are called L1 and all these numbers are called L2. आगे वाले जितने भी नंबर हैं उनको क्या बोला जाता है L1 बोला जाता है और पीछे वाले जितने भी वैल्यूज हैं उनको क्या बोला जाता है L2 बोला जाता है. Here these are called F. L1 means lower limit. L2 means upper limit. F means frequency. इनके बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है 0 और 10, 10 और 20, 20 और 30 इसको बोलते हैं I. That is class interval. L1 lower limit निचली सीमा, L2 upper limit, F frequency आवृत्ति और class interval means वर्गांतर. एक है लोअर लिमिट, एक है अपर लिमिट. इसके बीच में एक निचली सीमा और एक ऊपरी सीमा. इसके मध्य में भी एक मूल्य होता है जिसको अपन कहते हैं x, मिड वैल्यू, which is calculated as L1 plus L2 divided by 2. तो ये बाइफरकेशन होता है कंटिन्यूअस सीरीज का जिसमें कितनी चीजें होती हैं. L1 होता है लोअर लिमिट, L2 होता है अपर लिमिट, I होता है वर्गांतर और F होता है फ्रीक्वेंसी और इनके बीच में जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं मिड वैल्यू, मध्य मान, जो कैसे ज्ञात की जाती है L1 plus L2 डिवाइड बाय 2 करके. जब कभी भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोई इंडिविजुअल सीरीज होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. डिस्क्रीट सीरीज होगी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बट जब कंटीन्यूअस सीरीज होगी तो यहां पर क्लास इंटरवल बहुत तरह के होते हैं. वर्गांतर अलग अलग तरह के वर्गांतर होते हैं. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल. वर्गांतरों का के प्रकार. यह टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू. हो आप लोगों को समझ में आया होगा.